Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss about the packing efficiency in body center cubic. Okay, before that we will understand about the body center cubic. This is your cube, okay, and the body center cubic is that in which atom present all the corners and body also. ओके, दैट इज नोन एज द बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसमें जो आपके एटम्स है कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे, साथ में आपके बॉडी में भी प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी है, ये बॉडी का जो एटम है, ये डायगोनल्स को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, यहाँ पे रेडियस आर और एड्स ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो पता चल सके। ठीक है, वॉल्यूम कितने स्फीयर से क्या टच कर रहा है उसको पूरा फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ मैंने डायग्राम प्लॉट किया, देखो बॉडी सेंटर में ये होगा, और ये आपका ये फर्स्ट वाले कॉर्नर का और ये इधर वाले कॉर्नर का, जिसको ये टच कर रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट ये टच करेगा आपका इस बॉडी डायगोनल को, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ए और सी बॉडी डायगोनल। ठीक है, तब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये ए और डी है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर, और बीच में ये पूरा है, यहाँ तक का रेडियस आर, यहाँ तक का रेडियस आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस आर। यानी ए और डी, जिसको मैंने नेम दिया है, वो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो अब देखो आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आपको एक्चुअल में ये वैल्यू चाहिए, ए डी और सी में आपस में रिलेशन देखना है। ठीक है, ए डी और सी, इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC, we will use the Pythagoras theorem. Okay, according to Pythagoras theorem, AD square is equal to AC square plus DC square. Okay, AD square is equal to AC square plus DC square. And student, here the value of AD is, here the value of AD is 4r, and the value of DC is A. Okay, we don't know about the AC. We will have to find that the AC. Okay, AD square is AD is equal to 4r square is equal to AC square plus A square, because DC is equal to A. We will have to find out AC, and we are going back here. We will use that right angle triangle ABC. In right angle triangle ABC, we know AC square is equal to AB square plus BC square, and we know about the AB and BC. Then we can calculate easily AC square. AC square is equal to A square plus A square, which is equal to 2A square. Now we have find the value of AC square, which is 2A square. Then AC square is equal to 2A square. Now we will have to put this value. After putting value, 4R square is equal to AC is equal to 2A square plus A square. Now 4R square is equal to 3A square. Okay, this is okay. And we can say that 4r is equal to under root 3a square, because it is a square root, square है ना ये, तो इसका square root बन जाएगा. Then we can say that 4r is equal to root 3 into a, because square से square root cancel हो जाएगा. Then we can say r is equal to root 3a divided by 4. Okay, root r is equal to root 3a divided by 4. And also we can say that 4r divided by root 3 is equal to a. We have calculated the value of r and value of a. Okay, a is 4r divided by root 3. Okay, then next work is volume of cube. Volume of cube, which is a cube. Here a is equal to 4r divided by root 3. And then put here 4r by root 3 cube, which is equal to 64r cube divided by 3 root 3. We have done our first work, and second work is volume of sphere. How many spheres is touches body center? 2 spheres touching. Okay, then the volume of sphere, 2 sphere. ठीक है, तो देखो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें स्फीयर का पैकिंग एफिशिएंसी के लिए.
क्योंकि हमें पता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बॉडी, कितना जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर रही है बॉडी, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि ये जो हमने निकाल दिया, ये तो हमने निकाल लिया, नीचे वाली चीज तो निकाल ली, लेकिन ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई बॉडी ये निकालनी है। तो उससे पहले हमें ये देखना है, वॉल्यूम तो वही होगा 4/3 πr क्यूब, लेकिन कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 2 स्फीयर को, तो वॉल्यूम होगा 2 स्फीयर का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर क्या होगा, 2 इंटू 4/3 πr क्यूब। ओके, देन दिस इज इक्वल टू 8/3 πr क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा, फिर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बॉडी कितना निकला है हमारा, 8/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकला है हमारा यहाँ पे, 64r³/3√3, 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो देखो r³ से तो r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे या 3.14 रखोगे, तो आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.68। ये तो आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की, लेकिन आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 100 से, तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी 68%। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों जैसा काम है, बस आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत है। डायग्राम में क्या है, बस ये देखना कि बॉडी कितने स्फीयर से टच कर रही है, 2 स्फीयर से, तो यहाँ वॉल्यूम 2 स्फीयर का निकाल दिया। अब हमें बॉडी डायगोनल यहाँ पे ये था, लेकिन हमें बॉडी डायगोनल की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए मैंने यहाँ से पहले ए बी सी में से बॉडी डायगोनल ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ए सी की वैल्यू हमें मिलने के बाद हमने इजिली पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसके ऊपर, पूरे के ऊपर, और आर और ए में अपना रिलेशन देख लिया, और उसके बाद ये वैल्यू उठा के आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दी और आपका ये आंसर। ठीक है, तो ये आपके तीनों हो गए, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनकी आपस में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, जिसमें आपका रेडियस 2 होंगे। एक जैसे मान लो कि अभी तक तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे ना, इनके बारे में, अब जो ये वॉइड प्रेजेंट है ना यहाँ पर, यानी इसका रेडियस होगा कैपिटल आर, इसका रेडियस होगा स्मॉल आर, तो इनके आपस में रिलेशन पढ़ेंगे आर और आर की, स्मॉल आर और कैपिटल आर की, नेक्स्ट वीडियो में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू।